state intervenes. Supported of free market maintain that as far as possible individuals should be free or to own property and enter into contract and agreement with those regarding price and wax and profit that should be free to compete with each other to gain the greatest amount of benefit. This is a simple description of a free market. Supporters of the free market believe that markets are left free of the state interference. The sum of market transactions would ensure overall a just distribution of benefit and duties in society. Those with merit and talent would be rewarded accordingly, while the incompetent would get a lesser reward. They would maintaining that whatever be a outcome of market distribution to would be just. ना मुक्त बाजार यानी कि फ्री मार्केट के साथ भी स्टेट का उसमें शामिल होना। तो फ्री मार्केट के जो सपोर्टर्स थे उनका ये मानना था कि जहाँ तक पॉसिबल हो इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को अर्जित करने के लिए हमें उसकी प्राइस, उसकी वैक्स, उसकी प्रॉफिट के बारे में कि दूसरों के साथ उनके क्या रिलेशन है, उनके साथ कितना उनका समझौता है, इसमें शामिल होने के लिए हमें फ्री होना चाहिए। उन्हें अपनी प्रॉफिट की अधिकतम मात्रा हासिल करने हेतु एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करने की छूट होनी चाहिए। फ्री मार्केट में ये भी कहा गया है कि जो इसके सपोर्टर्स है वो ये मानते हैं कि अगर मार्केट को स्टेट के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए तो बाजार में जो कारोबार होगा उसकी टोटल कुल मिलाकर समाज में लाभ और उसमें कर्तव्य ड्यूटीज़ का न्यायपूर्ण डिवीज़न भी निश्चित कर दिया जाएगा। इससे उसकी योग्यता यानी उसका टैलेंट, उसकी प्रतिभा से लैस लोगों के लिए अधिक प्रतिफल मिलेगा, उसको अधिक प्रॉफिट होगा। जबकि जो ऐसे लोग जिनके पास कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई भी काम नहीं है, तो उनका मान्यता यह है कि मार्केट में जो भी डिवीज़न होगा उसके परिणाम से जो भी हमें जस्टिस मिलेगा वो हमें सही जस्टिस मिलेगा। नाउ द However, not all free market supported today would support absolutely unregarded market. Many would now be willing to accept certain restrictions. For instance, it could step in to ensure a basic minimum standard of living to all people so that they are able to complete one equal terms, but they might argue that even there the most efficient way of providing people with basic service and might to be allow market in healthcare, education and such service to develop. In other words, private agencies should be increased to private and service while state policies should try to improve empower people to buy those services. It might also be necessary for the state to give special help to the old and the sick who cannot compel it. But apart from this, the role of the state should only be a maintaining framework of law and regulations to ensure that competitions between individuals remain free of concern and other obstacles. They maintain that a free market is the basis of a fair and just society. The market, it is said, does not care about the caste or religion of the person. It does not see whether you are a man or a woman. It is a nature and concerned with the talent and skill that you have or you have to merit, then nothing else matters. अर्थात अगर हम मार्केट के बारे में देखते हैं तो ये कहा जाता है कि ज़्यादा विकल्प हमें मिलने चाहिए। उसमें कोई शक नहीं कि अगर मार्केट के अंदर प्रोडक्टर या जो उपभोक्ता है उसे कितना विकल्प देती है, चाहे हम वैसे ही चावल पसंद करते हैं जो पसंदीदा स्कूल में जा सकते हैं, ये कहते हैं वैसा ही आप खाना पसंद करते हैं जो जैसा आप देखते हैं कि मेरा स्कूल पसंद का है। तो बेशक ये है कि जो हमें सेवाएं मिल रही है उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसकी जो
गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है वस्तुओं की या फिर जो सर्विस दी जा रही है वो खरीदने लायक है या नहीं है। ऐसी ही जो प्राइवेट एजेंसियां होती हैं वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा नहीं देख पाती हैं। वे तो उस मार्केट में प्रवेश ही नहीं करेगी जहाँ सस्ती और घटिया चीज़ें दी जाती है। यही कारण है कि जो गांव का एरिया है, जो हमारे ये विलेजेस हैं, यहाँ बहुत ही कम प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट स्कूल्स होते हैं और जो कुछ खुले भी हैं वो भी एक बहुत ही लोअर क्वालिटी के होते हैं। ऐसे ही जो हॉस्पिटल्स होते हैं या घर बने होते हैं, ये आप सोच रहे हैं, सच है कि इन कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट को ही आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गांव के अंदर या विलेजेस के अंदर जो स्कूल खुले जाते हैं वो बहुत ही या तो प्राइवेट होते ही नहीं है या तो गवर्नमेंट होंगे, और गवर्नमेंट होंगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर प्राइवेट हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत ही डाउन होती है, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट लोगों के लिए अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, ना स्कूल के लिए, ना प्रोडक्शन के लिए, ना मार्केट के लिए। जब गाँव में ये सब कुछ नहीं मिल पाता है तो गवर्नमेंट को आगे बढ़ कर के प्राइवेट की इन गाँव में आना पड़ता है और वहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस खोलने पड़ते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे जॉब करने के लिए कोई प्राइवेट कंपनी हो या फिर मार्केट हो। ये सब गवर्नमेंट को आकर के वहाँ पर खोलना पड़ता है।